بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ایک شکایت اور شکوہ ہے آپ لوگوں سے کہ جو چیز بھی سمجھ میں نہ آئے, کچھ بھی ہو, چھوٹی بات بڑی بات, وہیں پہ مجھے روک لیں. دیکھیں یہ ایک کلاس جو ہے نا, وہ کلاس کا ماحول کم اور ڈسکشن کا ماحول زیادہ ہو, تاکہ ایک آدمی صحیح سوال کرتا ہے ریلیونٹ, تو اس کے ذریعے سے کئی لوگوں جو ہے نا ان کا مدعا جو ہے بیان ہو جاتا ہے. ابھی جیسے بات میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سمجھ یہ رہا تھا کہ شاید میں نے کانسیپٹ صحیح دے دیے ہیں, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ وہ نہ پوچھنے کی وجہ سے, کیونکہ سوالات آپ نے پوچھے نہیں تو اس کو ایز اٹ از آپ نے لے لیا, اس کو جو ہے سمجھا نہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش میری یہ ہوگی, ہمیشہ یہ طریقہ کار قرآن کا بھی ہے اور ہم نے جو سمجھا ہے کہ بنیادی باتوں کو جو ہے ریپیٹیشن کرنی چاہیے, بار بار کرنی چاہیے, تاکہ جو کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اس کے اندر جو ہے تلافی اس کی ہو جائے. ٹھیک, تو ہم جو ہے بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں, پہلے سے شروع سے. دیکھیں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ کمپوز ہوتا ہے یا تو حرف ہوگا اس کے اندر, یا اسم ہوگا, یا فعل ہوگا. یعنی پارٹس آف اسپیچ جو ہیں عربی زبان میں 3 ہی ہیں, 8 نہیں ہیں انگلش کی طرح. حروف, اسم اور فعل. حروف بہت آسان ہے, سمجھنا کم پڑتا ہے, لیکن یاد کرنا پڑتا ہے. اس کو تو آپ نے یاد کرنا ہی کرنا. اسم جو ہے اور فعل, اسم اور فعل میں اسم نسبتاً آسان چیز ہے, افعال جو ہیں وہ زیادہ ہیں, زیادہ مطلب مشکل چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس کے کہ اسم اور فعل کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 2 کانسیپٹ پھر دوبارہ سمجھنا اچھی طریقے سے, کہ جب بھی اسما کو اور افعال کو سمجھا جائے گا تو سب سے پہلے اس کے روٹ ورڈ تلاش کیے جائیں گے, بنیادی حروف جو اکثر و بیشتر 3 ہی ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ نے روٹ ورڈ کو پہچان لیا تو آپ کو بنیادی معنی پتا چل گئے. اب پیٹرن, جو اس کا پیٹرن ہوگا, جو اس کا وزن ہوگا, وہ اس کو ایگزیکٹ فٹ کرے گا. ٹھیک ہے, جیسے فرض کریں ایک جو ہے مادہ ہے کاف, تے اور لام, قتل سب کو معلوم ہے, لیکن جب یہ قاتل بنے گا تو اس کے معنی ہوں گے قتل کرنے والا. صابر کا مطلب ہوگا صبر کرنے والا, شاکر شکر کرنے والا. اس لیے کہ اب آپ نے پیٹرن پتا چل گیا کہ یہ جو ہے جو قاتل, شاکر, صابر, یہ سب جو ہے ذاکر, ذکر کرنے والا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے اگر جیسے ہم پتہ ہے مقتول کسے کہتے ہیں, جو قتل کیا گیا, اس کا پیٹرن کاف تے لام تو اس کا مادہ ہے, لیکن مقتول کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے جو ہے جو الفاظ اس پیٹرن پہ ہوں گے تو اس کے معنی جو ہے ویسے مذکور جس کا ذکر کیا گیا, منقول جس کو نقل کیا گیا, اس طرح سے جو ہے ہر ایک کے معنی پیٹرن کی وجہ سے جو ہے ویسے بن جائیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں پینٹر, پینٹ کرنے والا, تو ایکٹر, اس طرح ریڈر, جو چاہے بنا لیں. تو اسم اور فعل کے اندر جو ہے سب سے پہلے مادہ پہچانتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے جو اوزان ہوتے ہیں اس کے حساب سے ایگزیکٹ معنی جو ہے ڈرائیو کر لیتے ہیں. اب اسما کے اندر جو ہے چونکہ اس کے پیٹرن بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ہیں, محدود ہیں, لہٰذا اسم جو ہے اکثر و بیشتر وہ مشکل پیدا نہیں کرتے. لیکن افعال کے اندر جو ہے پیٹرن بہت زیادہ ہیں, اس میں بھی جو ہے بنیادی کچھ ہیں جو ہم نے یاد کروائے تھے فعلہ والے, اسی طرح مضارع والے آئیں گے. ٹھیک ہے, پھر باقی جتنے بھی ہیں وہ اس سے ڈرائیو ہوتے ہیں. تو جب تک جو ہے بنیادی طور پہ جو بنیاد ہے, بیسک ہے, وہ آپ یاد نہیں کریں گے تو ڈرائیو کیسے کریں گے؟ لہٰذا یہ تو کرنا ہی پڑے گا. لیکن میرا کام تو سمجھانا ہے, میں سمجھا دوں گا, لیکن جو ہے رٹنے والا معاملہ, یاد کرنے والا معاملہ تو آپ نے کرنا ہی پڑے گا. میرے اچھے دن آ گئے 1-2 گردانوں کے بعد, آپ لوگوں کے برے دن آئیں گے, اس لیے کہ آپ نے جو ہے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب جو ہے اسما کے انفرادی فعل ہے, اس کا کوئی طریقہ نہیں بتایا جاتا. میں نے 1-2 چیزیں پڑھانے کی حوالے سے دی, یاد کرانے کی, یاد کریں تو پتہ چلا کہ میں یہاں سے ذکر کر رہا ہوں, وہ شہید کے ساتھ سے ذکر کر رہا ہے. تو یہ انفرادی ہوتا ہے, اس سے یاد کرنے ہوں گے. آپ اپنا پیٹرن ذہن میں بیٹھا لیجیے, یا تو ایسے اس کو اتار لیجیے کہ یہ میٹرکس سے اس کو ایسے اتار لیا, یا آپ نے اس کو کوئی پیٹرن بنا لیا اپنا, اس کے حساب سے یاد کر لیا.
देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो है जो कॉन्सेप्ट इसम के हवाले से वो मैंने दिया था, मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमन। ये इसम के जो है ये बहुत बुनियादी बात है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि जैसे हमारे अभी हमको आज आ भी जाएगी गर्दान। फर्ज करें कि अगर एक जुमला है ज़राबा, पीटा, अगर इसके आगे आ जाए ये मुस्लिमुन भी आ सकता है, ज़राबा मुस्लिमुन। अब पीटने वाला कौन है? मुस्लिम। एक मुसलमान ने पीटा, ये करने वाला है, इसलिए कि दो पेश बता रहे हैं कि ये करने वाला है, फाइल है, उर्दू में फाइल कहते हैं। अच्छा, अगर ये हो जाए ज़राबा, पीटा, उसने पीटा, अगर यहां पे आ जाए मुस्लिमन, अब क्या होगा? उसने पीटा एक मुसलमान को, ये जबर दो बता रहे हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसको पीटा गया। इसी तरह से अगर बिलफर्ज है किताबो मुस्लिमिन, यानी एक मुसलमान की किताब, ये जो का के की मफहूम है जो उर्दू में हम ने या को या का के की बनाते हैं, अरबी जबान के अंदर जो है ये नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव कहें, सब्जेक्ट कहें, ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव केस जो होते हैं वो दो पेश, दो जबर और दो जेर से आते हैं। ठीक है, ये जो है ये नाउन्स की बात कर। फिर आपने नाउन्स के अंदर ये आगे कि किसी भी जो है जेंडर में, मेल है इसको फीमेल बनाना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? गोल ता लगा देते हैं कि ता, अगर ये मुस्लिमुन है तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। अगर दो हो जाते, चूंकि हमारी उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो है तस्निया नहीं होता, अरबी जबान में वो किसी ने सवाल पूछा था, असल में वसी है इसका दामन, दो के लिए अलग पैटर्न है, उसके लिए आने, आईने और आईने लगाते हैं, मुस्लिमाने, मुस्लिमैने, मुस्लिमैने। अगर फीमेल हो तो मुस्लिमताने, मुस्लिमतैने, मुस्लिमतैने। अगर तीन हो या तीन से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीन। अगर ये मुअन्नस हो तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक, तो हमने मुज़क्कर, यानी इसको ये समझ लें कि हमने इसम को, इसका ये कॉन्सेप्ट है, इसम को जो है चार पहलुओं से जो है हम देखते हैं तो सही जो है तर्जुमा कर सकते हैं। एक उसकी हालत है जो फाइली, मफूली या इजाफी होती है। एक उसकी जिन्स है जिसमें गोलता लगा के मुज़क्कर मुअन्नस कर लेते हैं। और फिर अदद है, अदद के अंदर जो है आने, आईने, आईने और ऊना, ईना, ईना, आतुन, आतिन, आतिन वगैरह। और एक है उसकी वसत, यानी वो प्रॉपर है या वो जो है कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को प्रॉपर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसके अंदर जो है अल का इजाफा कर दें। यानी इसका मतलब होगा एक मुसलमान। अगर हम कोई खास कहें दी मुस्लिम, तो ये हो जाएगा अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिम, सिर्फ अल। फिर अगर अल दो है तो अल मुस्लिमान है, अल मुस्लिमाइन है, उसमें तशदीद नहीं आती, उसके ऊपर दो पेश, दो जबर नहीं आते। अल के बाद जो है कुरान में आप नोट भी कर लेंगे तो जबर पेश या जबर या जेर आता है, इसको हम डिटेल में भी कर लेंगे। ये तो हो गया इसम क्या, ये नाउन के लिहाज से। अल और तनवीन एक साथ कभी नहीं आते, तनवीन खत्म हो जाती है। ये भी जो है अभी मैं ये जो बता रहा हूँ प्रोनाउंस कर रहे हैं अपने। ये मैं लास्ट टाइम शुरू किया था मैंने, लेकिन जो है वो जल्दी कर दिया था। प्रोनाउंस ज़मायर। कोई साहब मुझे जो है ना इसका फर्क बता दें, ही, हिम और हिज का बताएं। बिल्कुल सही है। देखिए ही जो है ये सब्जेक्ट बन के आ रहा है। ही, जैसे हमने कहा कि ही सॉ, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद हिम, ये ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, आई सॉ हिम। और अगर जो है हम कहेंगे हिज बुक, बुक को जो है आपने क्या किया, रिलेट किया है हिज के साथ, तो इसको हम कहते हैं हालत फाइली, ये हालत मफूली और ये हालत इजाफी।
یعنی ضمائر کے اندر ہمارے اردو میں کہیں ہوتی کہیں نہیں ہوتی، لیکن جو ہے عربی زبان میں ہر ضمائر کے جو ہے 3 حالتیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ فاعلی، مفعولی اور اضافی. سبجیکٹ یا نومینیٹو کیس، آبجیکٹ، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے اس کے آخری اضافی کیس ہے. اب ذرا سلائڈ دکھا دیں، یہ پیج نمبر 16 جی. دیکھیں آپ اس کے اندر پہلا ہے ہوا، پھر ہے ہو، کوئی وہ پیچھے رکھے، پیچھے آگے بڑھ گیا. یہیں پر رکھیں. دیکھیں ہوا، ہو، ہیا، ہا، ہا. دیکھیں جیسے مذکر لکھا ہے، مؤنث لکھا ہے. ہوا جو ہے اس کے معنی ہوں گے ہی کے، اور ہیا کے معنی جو ہوں گے شی کے ہوں گے. پھر ہما 2 کے لیے ہے، مذکر مؤنث، پھر جمع کے لیے ہے، پھر مذکر مؤنث یعنی حاضر کے لیے ہے، پھر اس کے بعد 2 کے لیے، پھر جمع کے لیے، اور پھر جو ہے آخر میں فرسٹ پرسن کے لیے انا، یا نی، یا اور اس طرح سے. جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، فرض کریں مجھے کہنا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے، تو ہم کہیں گے ہوا وہ مسلمون، وہ مسلمان. اسی طرح اگر یہ ہیا آ جائے گا تو یہاں پہ کہا جائے گا ہیا وہ ایک عورت، شی از اے مسلم، تو یہ کہیں گے ہیا مسلمتن. پھر اگر 2 آ گئے تو ہما مسلمان، ہما مسلمتان، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، اور ہننا مسلماتن. پھر اگر مجھے کہنا ہے کہ تم مسلمان ہو تو انتا مسلمون، انتی مؤنث کے لیے، انتی مسلمتن، انتما مسلمان، تم 2 مسلمان ہو، انتما مسلمتان. پھر انتم مسلمون، انتنا مسلماتن. میری بات ہو رہی انا مسلمون یا انا مسلمتن، اور نحنو ہوگا نحنو مسلمان یا مسلمون، 2 ہیں جمع. ٹھیک. تو یہ سارے کیس جو ہیں وہ ہیں نومینیٹو یا سبجیکٹ بن کے آ رہے ہیں. اگر بالفرض کے مجھے مفعولی ہے، وہی معنی وہی ہے، یہاں پہ ہوگا وہ. اب اگر مجھے کہنا ہے اس کو، جیسے فرض کریں اس نے اس کو پیٹا، تو ہم کہیں گے ضربا، سیکنڈ والا ضربا ہو. پھر اگر اس نے اس عورت کو پیٹا ہے تو ضربا ہا. پھر ضربا ہما، اس نے 2 مردوں کو پیٹا، ضربا ہما ان 2 کو، ضربا ہم اس نے ان سب کو، ضربا ہننا اس نے ان سب عورتوں کو. ضربا کی اس نے تجھ کو پیٹا، ضربا کی اس نے تجھ مؤنث کو پیٹا. ضربا کما تم دونوں کو پیٹا اس نے، ذرا کما مذکر مؤنث ایک ہی آئے گا. ضربا کم اس نے پیٹا تم سب کو. ضربا کننا اس نے پیٹا تم سب عورتوں کو. ضربنی، ضربنی اس نے مجھے پیٹا، اور ضربنا اس نے ہم سب کو پیٹا. تو یہ کون سا کیس ہے؟ آبجیکٹ بن کے آ رہا. اس نے اس کو، دیکھیں کو آ گیا اردو کے اندر، تو یہ جو ہے آبجیکٹو، یہ جو ہے آبجیکٹ بن کے آ رہا. اگر ہم وہاں پہ آ جائیں اضافی پہ، فرض کریں مجھے کہنا ہے اس کا رب، تو کیا ہوگا؟ رب ہو، اس کا رب. اگر وہ ہوگا کہ اس عورت کا رب، تو ہو جائے گا رب ہا. ان دونوں کا رب ہما. پھر ان 2 عورتوں کا رب ہما. پڑھتے جائیں میرے ساتھ، رب ہم ان سب کا رب، رب ہننا ان سب عورتوں کا رب. ربو کا کیا معنی ہوں گے؟ تیرا رب. ربو کی تجھ عورت کا رب. پھر ربکما فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو کما ربکما تم دونوں کا رب. ربکما عورت کے لیے بھی آئے گا ربکم تم سب کا رب. ربکنہ تم سب عورتوں کا رب. پھر ربی میرا رب، اور ربنا. تو ہم جو ہے اپنے کیس کے لحاظ سے کہ وہ جو ہے فاعل ہے، مفعول ہے، اضافی ہے، اس کے لحاظ سے ضمیر تو معنی اس کے ہی ہوتے ہیں ہوا کے، لیکن اس کے حساب سے. اور یہ بہت کثیر استعمال ہے، بار بار آئیں گے قرآن کے اندر، بہت مرتبہ آئیں گے. لہذا اس کو جو ہے ذرا ذہن میں رکھنا. ایک تو یہ کہ فاعلی، مفعولی اور اضافی میں کہیں پر چینج ہے، کہیں پر تو ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو میرے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھیں. ہوا، ہو. یہ ہو بھی، یہ بھی تھوڑا سا جو ہے یہ فلوٹنگ ہے. ہو کی بجائے کبھی ہی بھی آتا ہے، فی ہی، اس طرح سے. اگر پیچھے زیر ہو تو وہ جو ہے فی ہو اچھا کہنا لگتا نہیں ہے، صوتی آہنگ بنتا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ فی ہی ہوتا ہے، فی ہو نہیں ہوتا. قرآن میں آ بھی جائے گا. تو یہ فلوٹنگ ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، وہ وقت پہ بتا دوں گا آپ کو. چلیں آپ ذرا پڑھنا شروع کریں. ہوا، ہو، ہیا،
हा हा हुमा हुमा हुमा, 3 बार देखे ऐसी हैं, हुमा हुमा हुमा, हुम हुम हुम, हुन्ना हुन्ना हुन्ना, अंता का, अंती की, अंतुमा कुमा कुमा, अंतुमा कुमा कुमा, अंतुम कुम कुम, अंतुन्ना कुन्ना कुन्ना, अना या और नाहनु नाना। ये काम ये कर सकते हैं। देखिए ये तुमा है ना, इस ते की जगह पे सिर्फ काफ लगा दे तो सारे याद हो जाएंगे, अंतुमा कुमा कुमा, अंतुम कुम कुम वगैरह। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, हर आयत के अंदर या दूसरी आयत के अंदर 3-4 मरतबा ये चीज मिल जाएगी। लिहाजा इसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि क्या है ये, कौन सी क्या है, कौन सी हालत में आ रहा है। कोई बात पहले पूछे, इसलिए कि मेरे गैप रह जाते हैं चीजों के, तो वो मैं जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे इससे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। ये बता दें कि हालत फाइली, मफूली और इजाफी समझ में आ गया। जब कुरान का तर्जुमा करेंगे तो समझ में आगे जाएगा। किसी को नहीं आया हो तो पूछेगा। वो इसम पहले पढ़ा था, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, ठीक है। ये अब हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस। वो नाउन थे, ये प्रोनाउंस थे, लेकिन इसकी मिसाल ही, हिम और हिज जो होती है, बस उस तरफ याद रखें। ये भी याद किए बगैर चारा नहीं है, तो ये याद करना पड़ेगा। हो गया? कोई बात पूछनी हो जी आप कौन सी चीज की बात कर रहे हैं? ये सारे किसके हैं? देखिए ये फाइल बन, ये जो है मफूल बन के आ रहा है, ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में होगा? उस पे काम हुआ है तो फेल के साथ आएगा। ये सेकंड वाला, ठीक है। यानी रायतु, मैंने उसको देखा। ऑब्जेक्ट जो होता है किसी का, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो फेल के साथ आएगा। लेकिन थर्ड जो है वो आता है, उसको रिलेट किया जाता है। तो रिलेट इसम से कहते हैं कि करते हैं, फेल से नहीं करते। रिलेट जैसे उसकी किताब, उसका घर, उसकी औलाद वगैरह वगैरह, तो वो हमेशा वो आखिरी वाला इसम के साथ रिलेट होगा। ये जो है रिलेट होगा फेल के साथ। और ये पहला वाला जो जैसे नॉमिनेटिव केस होता है, हम किसी के बारे में खबर देते हैं, वो जो है उसके आगे फेल भी हो सकता है कि उसने खाया या उसने देखा या वो बहुत अच्छा मुसलमान है। तो ये पहला वाला जो है दोनों से रिलेट हो सकता है, इसम से और फेल से। लेकिन दूसरा वाला सिर्फ और सिर्फ फेल से होगा और तीसरा वाला इसम से होगा, ठीक है। और कोई सवाल पूछना? यही पूछ लें, कोई उलझन, कोई ऐसी बात समझ में ना आए। बुनियादी कॉन्सेप्ट है, ही, हिम और हिज याद रखें तो। अच्छा, फिर हमने जो है फेल के अंदर पढ़ा था, मैंने बताया था फेल माजी की गर्दान। अब तो याद हो गई होगी, ठीक है। चलें, उस एक मर्द ने किया, क्या कहेंगे? फाला। उस एक मर्द ने किया, फाला। उन दो ने किया, फाला। उन सब ने किया, फालू। उस एक औरत ने किया, फालत। उन दो औरतों ने किया, फालता। उन सब औरतों ने किया, फालना। तूने किया, फालता। तुम दो ने किया, फालतुमा। तुम सब ने किया, फालतुम। तू एक औरत ने किया, फालती। तुम दो ने किया, फालतुमा। तुम सब ने किया, फालतुन्ना। मैंने किया, फालतू। और हमने किया, फालना। देखिए इसके बगैर जो है गुजारा नहीं है, तो करना ही करना पड़ेगा और सादा है। इसको एक मरतबा जो है गर्दान करें उस तरह से जैसे शकरा से, ठीक है। करें जरा। उसने शुक्र किया, शकरा। उन दो ने किया, शकरा। उन सब ने किया, शकरू। उस एक औरत ने किया, शकरत। उन दो औरतों ने किया, शकरता। उन सब ने किया, औरतों ने, शकरना। तूने किया, शकरता। तुम दो ने किया, शकरतुमा। तुम सब ने किया, शकरतुम। तू एक औरत ने किया, शकरती। तुम दो ने किया, शकरतुमा। तुम सब औरतों ने शुक्र किया, शकरतुन्ना। मैंने किया, शकरतू। और हमने किया, शकरना। ये तू, ना वगैरह जो है उससे जो है पहले फेल आ गया, उसके बाद जो है वो आखिर में बता दे कि करने वाला कौन है। फाइल उसी के अंदर छुपा बैठा है, वो बता दे, ठीक। तो इसके बगैर जो है गुजारा नहीं है। आपने एक तो ये जो है गर्दान हुआ, हु, हिया, हा वगैरह ये होना चाहिए, याद ध्यान में होना चाहिए। अब जो है सिर्फ एक जो है ना मुजारे की गर्दान जो है मैं लिख देता हूं।
बल्कि लिखी हुई तो ये यहाँ पे लिखी हुई है, पेज नंबर निकाल लें जरा एक मिनट। उसके बाद हम आते हैं कि तर्जुमे कुरान में हम क्या क्या चीजें करना जरूरी है। जी पेज नंबर है, देखें जरा उसके आगे, इसके आगे ये है 51 पर। ये तो आपको पता ही होगा कि दूसरे कलमे पे जबर भी होता है, पेश भी होता है, जेर भी होता है। वो जी जी वो ये कह रहे हैं, ये फ्लोटिंग का हमने जो माजी की गर्दान याद की, हम करते थे फाला से, उसने किया, लेकिन मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जेर भी हो सकता है और पेश भी हो सकता है, डिपेंड करता है, वो लिखा हुआ होगा, लेकिन मानी होते हैं उसने किया, समया उसने सुना, हमेदा उसने हमद की, जबर जैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, जबर जेर या पेश होगा। इसके मानी होते हैं फाला, उस एक मर्द ने किया। अगर मुझे ये कहना हो, यानी अगर मैं क्या करूं कि फ्यूचर को और प्रेजेंट को साथ मिला दूं, फ्यूचर को प्रेजेंट टेंस को साथ मिला दें, वो करता है या करेगा, वो जुमला बता देगा कि क्या मानी, दोनों है, तो इसको हम कहते हैं यफ़अलु। यहां पर भी जो है जबर और जेर जो है वो फ्लोटिंग है, जबर भी हो सकता है, जेर भी हो सकता है, पेश भी होता है, ये लिखा हुआ होगा कुरान के अंदर, मुजारे कहलाता है। यानी फ्यूचर को और प्रेजेंट को जमा कर लें तो उसको अरबी जबान में मुजारे कहते हैं। ये मुजारे और ये माजी की गर्दान में अब देखें यफ़अलु के मानी क्या होंगे, वो करता है या करेगा। अच्छा दो को क्या कहेंगे, देखें जरा आगे, यफ़अलाने, वो दो करते हैं या करेंगे, गर्दान देखते रहें। अच्छा अगर करना कहना हो वो सब करते हैं या करेंगे, यफ़अलूना, देखिए गर्दान के साथ यफ़अलु, यफ़अलाने, यफ़अलूना। इसमें देखिए यहाँ पर तब्दीली जो है शुरू में भी है, या ता अलिफ नून वगैरह ये यहाँ पे शुरू में भी आएंगे, और आगे जो है आना, आने वगैरह जो तस्निया के हैं, ये जमा ऊना वगैरह वो भी आती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, पहले से मुझे तर्जुमा सही से बताएं इसका। इसके बाद लिखा हुआ है तफ़अलु, क्या मानी होंगे सेकंड लाइन में, वो एक औरत, देखिए मुज़क्कर की बात हुई ना, यफ़अलु, यफ़अलाने, यफ़अलूना, वो एक मर्द करता है, वो दो मर्द करते हैं, वो सब मर्द करते हैं। अब है इसके नीचे मोनस तफ़अलु, वो एक औरत करती है, फिर तफ़अलाने, वो दो औरतें करती हैं, यफ़अलना, वो सब औरतें करती हैं। फिर नीचे आ गया तफ़अलु, वैसे सेम ही है बिल्कुल, तफ़अलु तू एक मर्द करता है, यहां भी ते आ गया, तफ़अलाने तुम दो मर्द करते हो, तफ़अलूना तुम सब मर्द करते हो, तफ़अलीना तू एक औरत करती है, तफ़अलाने तुम दो औरतें करती हो, और तफ़अलना तुम सब औरतें करती हो, अफ़अलु मैं करता हूं, और नफ़अलु हम सब करते हैं। ठीक है, ये गर्दान जो है ये भी इसके अंदर मुजारे के अंदर बस ये इससे ये मुश्किल इस वजह से है कि इसमें जो है इजाफी या ता अलिफ नून ये भी याद रखना पड़ता है, और उसके आगे तस्निया के लिए आने और जमा के लिए ऊना। तो ये गर्दान भी बुनियादी है, पहले फाला को डाइजेस्ट करें, फिर उसके बाद यफ़अलु को डाइजेस्ट करें। ठीक है, चले फर्ज करें ये है लफ्ज के जी हाँ सेम है, बिल्कुल सही कहा आपने। जो जुमला जो होगा टेक्स्ट जो होगा बता देगा इसके अंदर कि यहाँ पे करने वाला तू है, किसकी बात हो रही, वो जुमला बता देगा। सियाक व सवाक जिसको कहते हैं, बिटवीन द लाइन्स बता देगा इसके हवाले से कि क्या किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन एक जैसे ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। चले देखिए हम इसको करते हैं, फर्ज करें ये यज़हबू वो जाता है, ठीक है, अगर वो दोनों जाते हैं तो क्या कहेंगे, यज़हबाने वो सब जाते हैं, यज़हबूना वो औरत जाती है, तज़हबू वो दो औरतें जाती हैं, तज़हबाने वो सब औरतें जाती हैं, यज़हबना तू जाता है, तज़हबू तुम दो जाते हो, तज़हबाने तुम सब जाते हो, तज़हबूना तू एक औरत जाती है,
तज़हबीना तुम दो औरतें जाती हो, तज़हबाने तुम सब जाते हो, तज़हबना मैं जा रहा हूँ, अज़हबू हम जाते हैं, नज़हब। ठीक है, इसको और कर लें। वो सुनता है, यस्मऊ, ठीक है ना, सीन मीम में एन समाज से बना है, सुनने के मानी में होते हैं। वो सुनता है, यस्मऊ, फिर क्या आएगा, यस्माने, हाँ पढ़ पूरी गर्दान करते हैं, यस्मऊ, यस्माने, यस्मऊना, तस्मऊ, तस्माने, यस्माना, तस्मऊ, तस्माने, तस्मऊना, तस्मईना, तस्माने, तस्मऊ, तस्माना, फिर अस्मऊ, नस्मऊ, नस्मऊ। ठीक है, फर्ज करें इसको जेर के साथ यह मदू कर लेते हैं, वो हम करता है। ठीक है, हम करता है, क्या हो जाएगा, यह मदू। ठीक है, हे मीम और दाल इसका मादा होगा, यह मदू वो हम करता है, वो जो है तारीफ कर रहा है। दो करते हैं, यह मदाने वो सब करते हैं, यह मदूना वो एक औरत करती है, तह मदू वो दो औरतें करती हैं, तह मदाने वो सब करती हैं, यह मदना तू करता है, तह मदू तुम दो करते हो, तह मदाने तुम सब करते हो, तह मदूना तू एक औरत करती है, तह मदीना तुम दो औरतें करती हो, तह मदाने और तुम सब करती हो, तह मदना मैं करता हूँ, अहमदू वो नसली कहते हैं, अहमदू वो सली, अहमदू मैं हम करता हूँ, हम सब करते हैं, अहमदू। अच्छा ये फिर बताएं, मैं आपको बता दूं कि ये जबर जो है ये फ्लोटिंग है, जबर भी हो सकता है, जेर भी हो सकता है, पेश भी होता है। जैसे कुरान में लिखा आएगा यशकुरु, और मैं यशकुरु, और जो कोई शुक्र करता है अपने लिए करता है, तो वो शुक्र करता है, यशकरू नहीं लिखा होगा, लिखा हुआ ही होगा यशकुरु, वो शुक्र करता है। चलिए पूरी गर्दान बोले, यशकुरु, यशकुराने, यशकुरूना, तशकुरु, तशकुराने, यशकुरना, तशकुरु, तशकुराने, तशकुरूना, तशकुरीना, तशकुराने, तशकुरना, अशकुरु, ठीक है। कोई मसला हो रहा है, कोई बात पूछनी बात है, ये गर्दान याद किए बगैर इतनी बुनियादी चीज है कि इसके बगैर जो है गुजारा नहीं। हाँ देख, जिस तरह अरब बोलते हैं, कहीं जबर बोलते हैं, कहीं जेर बोलते हैं, कहीं पेश बोलते हैं। ठीक है, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम ये नहीं कहते समा अल्लाहु लिमन हमदा, क्या बोलते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तो अरब उसको समा नहीं कहते, समिया कहते हैं। तो चूंकि कुरान में तो जेर जबर लगे हुए हमारे लिए, तो कहीं पर वो जबर बोलते हैं, कहीं पर जेर बोलते हैं, कहीं पर जो है पेश बोलते हैं। जैसे फर्ज करें ये लफ्ज लिखा हुआ है आपके लिए, अब इसका मतलब होता है बला, बला भी उर्दू में जैसे हम बला, कभी बिला भी पढ़ सकते हैं, कहीं बुला भी पढ़ सकते हैं, कहीं जबर दे पेश लगा होता है नहीं, क्योंकि हम उसके टेक्स्ट से यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे बुला है या बिला है या बला है या बिल्ला है या बल्ला है, जो भी कुछ कर रहे हैं। तो क्या है, हम इतने जो है यूज्ड टू हो जाते हैं उससे कि हमें जेर जबर की जरूरत नहीं पड़ी होती। जैसे इस नहीं, एक ही होगा या जबर के साथ, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात बताई आपने, सही सवाल पूछा है। देखिए या तो वो जबर से बोला जाएगा, या वो जेर से बोला जाएगा, या वो पेश से बोला जाएगा, एक साथ तीनों से नहीं बोला जाएगा। समय आएगा हमेशा, क़यामत तक जो है ये समय ही बोला जाएगा, समा नहीं कुछ नहीं होती, समूह नहीं होती। नहीं वो तो इसलिए लिख रहे हैं इसके हवाले से कि हम ये कह रहे हैं कि पहला हर्फ समझने के लिए है, ये जनरल है, ये जनरलाइज है, फाला ये फईला भी हो सकता है और फौला भी हो सकता है। इसमें मैंने क्या किया, गर्दाना फाला का करे, फिर फईला का करे, फिर फौला का करे। इसमें जो है समझदार लोगों के लिए नहीं ये कहा तो भाई जबर भी हो सकता है, जेर भी हो सकता है, कुरान में लिखा हुआ है कि अरब किस तरह बोलते हैं। ठीक है, कोई और सवाल हो? देखिए हम इसके बाद जो है बड़ी छलांग लगा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला सवाल लेंगे। हम आ रहे हैं बस इतना आज की ग्रामर के लिए काफी है।
काफी है। अगर आपने इसको डाइजेस्ट कर लिया हुआ या हा वगैरह और इसके बाद जो है ये फलू ये फलान या फलूना इसको याद कर लिया, अगर रफीक साहब जो है जरा सख्ती करें और ये कह दें कि भाई जो याद नहीं करेगा छुट्टी नहीं, उसकी चाय भी बंद है, चाय भी नहीं मिलेगी उसको, तो वो पहले याद करके जाएं, ठीक है जी। हाँ, किस तरीके से नहीं हुआ, यानी उस तरह रब्बू रब्बू इस तरह जी 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 उस तरह चलते हैं। देखिए सबसे आखिरी वाले तो बिल्कुल आसान सी है, ठीक है। जैसे मुझे कहना है उसका रब, हिज लॉर्ड हिज अल्लाह जो भी कुछ कहें, रब्बुहु उसका रब। अगर मुझे कहना है उस औरत का रब तो क्या कहूंगा, रब्बुहा। सेकंड लाइन जब सबसे आखिरी में देखें, रब्बुहु उसका रब, हिज लॉर्ड। अगर मुझे कहना हो हर लॉर्ड में क्या कहूंगा, रब्बुहा। फिर क्या है, उन दोनों का रब रब्बुहुमा, और उन दो औरतों का रब भी रब्बुहुमा ही रहेगा। उन सब का रब रब्बुहुम, उन सब औरतों का रब रब्बुहुन्ना। तेरा रब माँ रब हो गया, मेरे सवाल कब्र के अंदर माँ रब का, ठीक है। जब माँ इसको कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो रब का तेरा रब। अगर औरत से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, रब्बुकी, तुम दोनों का रब रब्बुकुमा, तुम दो औरतों का रब रब्बुकुमा, तुम सब का रब रब्बुकुम, तुम सब औरतों का रब रब्बुकुन्ना, मेरा रब रब्बी, और हम सब का रब। ये समझ में आ गया आप लोगों को। ये आखिरी समझ जैसे किताबुहु किताबुहा इस तरह करते चले आए, जो इसम में लगाना चाहे, इस्मुहु उसका नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम, जो भी लगाना चाहे। सेकंड जो है हालत मफूली, इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट बन के आता है। फर्ज करो मैं कहते हैं उर्दू में कहते हैं रई तू, मैंने देखा। किसको देखा, मैंने उसको देखा, रई तू हु। उस औरत को देखा, रई तू हा। उन दोनों को देखा, रई तू हुमा। उन दो औरतों को देखा, रई तू हुमा। उन सब को देखा, रई तू हुम। उन सब औरतों को देखा, रई तू हुन्ना। मैंने तुझे देखा, रई तू का। तुझ औरत को देखा, रई तू की। रई तू कुमा, रई तू कुमा, रई तू कुम, रई तू कुन्ना, रई तू नी, और रई तू ना। मैंने अपने आप को देखा, हर सबको देखा। तो यहाँ पे जो है ये मफूल बन के ऑब्जेक्ट बन के आएगा। नहीं रईती नहीं होगी, रईता नहीं है। इसको सेव करते नी लगाते हैं इसके आगे, वो वहां पे भी इसके बड़े मुश्किल से नाम है, नून वकाया, बचाने वाला, आखिरी हरकत को बचा लेता है। जरा मुश्किल टर्म है वो थोड़ी सी। पहला भी बता दूं उसका हुआ का। देखिए ये जो है ये नॉमिनेटिव केस बन के आ रहा है, हुआ वो। अब मुझे कहना वो एक मुसलमान है, हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान औरत है, हिया मुस्लिमतुन। तुम दोनों मुसलमान, वो दोनों मुसलमान है, हुमा मुस्लिमान है, क्योंकि दो है ना। हुमा मुस्लिमतान है, वो दो औरतें। फिर हुम मुस्लिमूना, जमा उसके हिसाब से हो जाएगा, हुन्ना मुस्लिमातुन। तू मुसलमान है, अंता मुस्लिमुन, अंती मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमातने, और अंतुमा मुस्लिमतान। अंतुम मुस्लिमूना या अंतुम सालिहूना, अंतुन्ना सालिहातुन या मुस्लिमातुन। फिर अना मुस्लिमुन या अना मुस्लिमतुन मुअन्नस है, तो फिर नहनो मुस्लिमान, दो भी हो सकते हैं, और नहनो मुस्लिमून। बस यहीं तक रखते हैं। इसको कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। उसके बाद जो है हम इंशाअल्लाह तर्जुमे कुरान पे आ रहे हैं। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह। आज के दिन मतलब मेरा प्लान ये था कि 20 मिनट 20 से 25 मिनट जो है वो ग्रामर हो, लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा। लेकिन इस पे तो मैं मतलब आपको बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक अगला काम ये करें कि इसको किसी तौर पे अपने ऊपर लाजिम कर लें कि मैं इसको रटूँ। याद तो करना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा कि ये वॉश हो जाएगा आगे जाके। अब हमारे तर्जुमे कुरान के अंदर देखिए बहुत आसान है। फिर मैं आपको बता दूं, मेहनत और एफर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात पहले भी हो चुकी थी कि जुमला जो है वो कंपोज होगा
हुरूफ से, हर्फ से, या अस्मा से, या फिर जो है अफाल से। हुरूफ के सिर्फ मानी होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है इसके तो मानी जो है जो भी होंगे, जितने भी हुरूफ आएंगे वो सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अंदर जो है कुछ इसके मखसूस नाम है, कुछ तरह वो बताते जाऊंगा साथ साथ, लेकिन अब जैसे तर्जुमा कुरान करेंगे तो मानी आते रहेंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बगैर कोई चारा नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन आते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, उर्दू में इस्तेमाल होते हैं तो मानी याद हो जाएंगे। अस्मा के अंदर जो है अभी तक हमने जो है जो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था वो था इस्म के 4 पहलू, वही जो हालत, ये कॉन्सेप्ट जरूरी था, बुनियादी कॉन्सेप्ट था। इस्म के 4 पहलू थे जिसके अंदर जो है वो उसकी हालत थी, फाइली, मफूली, इजाफी, उसके बाद जिन्स था, अदद था, और मार्फा बनाने के लिए अल लगाया था। फिर इस्म के बाद जो है जो प्रोनाउन जमाइर जिसको कहते हैं, नाउन्स और जमायर जो हुआ हु आज हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो है वो आएगा मुरक्कबात, यानी जब दो इस्म आपस में मिलेंगे तो उसके कभी इनकम्प्लीट मानी पैदा होंगे, कभी इनकम्प्लीट होंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है वो, इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इसको कर लेंगे, बहुत आसान है। अब फिर इसके अंदर मुरक्कबात रह गए और कुछ ऐसे अस्मा कि जिसको मतलब अक्सर हमारे जो है ना फारूकी साहब जिक्र करते रहते हैं कि इसमें इशारा हुआ, वो भी करीब का, बईद का, मुश्किल काम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। और मौसूल वगैरह, अल्लज़ीना, अल्लज़ी कुरान में आता है, ये कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि जो जिसके बगैर तर्जुमे कुरान ना हो सके। ये 2 चीजें जो है वो आपने आहिस्ता हो जाएगी, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये समझ के लिए मुस्लिमन 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 और ये हुआ हु इसको तो याद करना ही पड़ेगा। फिर अफाल में आए तो इसके अंदर जो है पहले कोई कॉन्सेप्ट जो वजन, उसका रूट वर्ड्स और वजन का तो था ही मामला, लेकिन हमने जो है माजी की गर्दान जो है वो पढ़ ली। फेले माजी, फेले माजी मुजर्रद, सलासी मुजर्रद। आज हमने इसमें इजाफा किया मुजारे, ठीक है, माजी पढ़ ली, मुजारे की गर्दान याद कर ली। अब यहीं से जो है डेरिवेशन होगा, वो होगा इसके अंदर नहीं, किसी चीज से रोकना, डू, डोंट। फिर आएगा अमर, करो, डू इट। फिर उसके बाद जो है मजहूल, जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, माजी मजहूल और मुजारे मजहूल इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है जब आज हम जो है तर्जुमे कुरान करेंगे तो हमारी रेंज में क्या है, अभी इस वक्त जो है माजी और मुजारे है, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे वैसे वैसे आपकी रेंज बढ़ती चली जाएगी। ठीक, ये मुजर्रद के साथ भी होगा, ये जो है मजीद फी के साथ भी होगा, जैसे हमने कुछ अगर याद रहा अफला, फाल वगैरह, इसके साथ भी होगा। फिर इसके बाद जो है इसको हम कहते हैं फेले सही, यानी जिसके मादे के हुरूफ के अंदर हमजा और कोई हर्फ 2 मरतबा या फिर वाव और या आ जाए तो उसकी शक्ल जो है चेंज हो जाती है, लेकिन वही चीज जो है यहाँ पे आ जाएगी, अभी आपकी रेंज से बाहर होगी। बस ये समझ लें, बाकी छोटी मोटी चीजें जो है बहुत, तो अभी तक आप यहाँ पहुंचे 3री क्लास में, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है आपका समझने का दायरा बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, इस वक्त किसी के पास कुरान है, वो जो डब्बे वाले थे, साबिर करने से साबिर करने साहब का कुरान शरीफ कॉपी एक पड़ी होगी ना, वो ले आइए, रखिए हुए। हाँ जी, मोबाइल खोल सकता है या इसके पर डायरेक्ट तो नहीं आ सकेगा? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। बस 4 बजे तक कर सकता कि आपने जो कुछ पढ़ा है अगर वो समझा हुआ है, याद है, तो फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करूंगा कि इसके मानी सही सही जो है आप मुझे बताएं, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। वो वाली गर्दान नहीं समझ आई थी। कौन? 9/14 वाली, 8/14 जी चलो, देखिए उसके अंदर हमने ये क्या था कि फाला जो है वो हमने कहा था कि ये मुजर्रद है, इसमें किसी का इजाफा नहीं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं खा, वो दिखा, लेकिन अगर मैं किसी को खिला, ठीक है, उसने खाया, उसने खिलाया, उसने खिलवाया किसी 3rd पर्सन से,
तो क्या होता है, कुछ हरूफ को इजाफा करके हम इजाफी मानी पैदा कर देते हैं। इसको तो हम कहते हैं, जो रूट वर्ड्स के साथ नजर आती है उसको हम कहते हैं मुजर्रद। लेकिन इसके साथ अगर कुछ अल्फाज, उसको मजीद भी कहते हैं। वो कितने थे? 8 थे। वो कौन कौन से थे? अफअला, फिर फअला, फिर फाअला। ठीक है, ये और ये सिर्फ फअला और फाअला। फिर तफअला, फिर क्या होगा? तफाअला। ये दोनों एक जैसे हैं, तफाअला। फिर इफ्ताला, इनफाला और इस्तफला। यानी जिस तरह से अफला, जैसे फाला के मानी होते हैं खरजा, वो बाहर निकला, तो फिर सारी होगी खरजा, खरजा, खरजू वगैरह। और अगर कहना उससे निकाला तो क्या हो जाएगा? अखरजा। उन दो ने निकाला तो अखरजा, फिर अखरजू। जो गर्दान आपने यहाँ पे की है वो यहाँ पे होगी, बस सिर्फ इसके मानी बदल जाए। अगर फर्ज करें ये वो धक्के दे दे के निकलवाया बड़ी इज्जत के साथ, तो यहाँ कहेंगे खर्रजा, खर्रजा, खर्रजू। इस तरीके से सिर्फ ये देखना होगा कि अभी मुजर्रद है, मजीद फी है। फिर गर्दान अगर माजी की याद है तो ये भी वैसे इस पैटर्न पे है। कुरान आ गया भी है। इन सब के मतलब जरा बता दीजिए। देखिए, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें होता यह है कि अगर कोई काम यहाँ पे जो है खुद किया है, नजला वो उतरा, अनजला उसने उतारा। इसके मानी होते हैं किसी चीज को बड़े एहतमाम के साथ करना, जैसे नजला धीरे धीरे, अल्लमा धीरे धीरे सिखाया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि दो पार्टियों का होना जरूरी, जैसे काबला, दो जो है आमने सामने हुए। इसके मानी अक्सर और बेशतर जो है मुकाबलतन दो टीमें होती हैं। इसमें असखुद सीखना है, असद खुद करना, और यहाँ पे क्या होता है मिलजुल के करना, बाहमी जिसको कहते हैं ना, बाहमी तौर पे। जैसे तवासी बिल हक, तवासी बिल तवासा, इसके अंदर इसी से आता है कि बाहम मिलजुल के करना। इसमें जो है कभी मुझे इसके मानी जो है जैसे हदमा गिराया, और यहाँ पे इन हदमा यहाँ पे हो जाएगा खुद ब खुद गिर गई। और इसके मानी जो होते हैं वो चाहने के होते हैं, तलब करने के। इस तक बड़ा, उसने बड़ा बनना चाहा, बड़ा था नहीं बड़ा बनना चाहा। ये आएंगे इंशाल्लाह, चूंकि ये उर्दू में बोले जाते हैं इसलिए मसला नहीं पैदा करेंगे। देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। मैं आपको बताते जाऊंगा कौन सी चीज जो है वो आपके रेंज में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। अभी जो है वो आप बता भी दिया था मैंने कि फेल माजी मुजारे वगैरह रेंज में आ जाएगा। ठीक, अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तात हैं, छोड़ दें। फिर है ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब। ज़ालिका के जो है असल मानी होते हैं डैट के, वो, लेकिन हम तर्जुमा करते हैं ये किताब। असल में जैसे होता है कि पानी जो है हम बैठ के पीने की हिदायत है, लेकिन आबे ज़मज़म खड़े होकर पिया जाता है। उसको जो है नुमाया किया है, अलग किया है। ये आम किताब नहीं है, बजाय तो डेड बुक, लेकिन तर्जुमा करते हैं ये किताब। डेड इसलिए लाया गया है कि ये किताब जो है उसकी जो है जो उसकी बुजुर्गी है उसको नुमाया किया जाए, उसको आम किताब। तो ये ज़ालिका के असल मानी होता है डेड के। एक और ये है कि ये असल में लोहे महफूज में जो किताब मौजूद है उसकी तरफ भी इशारा करें। यानी मेरे सामने जो किताब है वो मैं यही कहूंगा कि किताब है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ला रही बकरी को बुनियादी तौर पर है ज़ालिकल किताब, इसके असल मानी तो होंगे डेड बुक। ठीक है, लेकिन हम करेंगे ये किताब। इसके ज़ालिका के मानी याद रखें, डेड के होते हैं, दिस के नहीं होते हैं। दिस हाज ही हाजा होता है, और हाजा हाजा वो आगे आ जाएगा। ला रई, ला माने नहीं के होते हैं। रईब जो है इसका असल तर्जुमा जबर के साथ अगर एक ही जबर हो, समझ लें इसको। अगर उस घर में जो है कोई मेल है ही नहीं, लड़का बच्चा भी नहीं है, यानी मेल नहीं है, तो हम कहेंगे ला रजुला, कोई आदमी उस जिन्स का है ही नहीं। तो यहाँ पे ला रईबा, रैब कहते हैं शक को। ला रईबा कोई शक नहीं है। अब देखें फी ही, हालांकि हमने पढ़ा था हुआ हु, लेकिन पीछे देर आया है तो उसका हम आहंगी जो होती है जेर के साथ होती है, असल में फी ही उसमें, यानी इस किताब में कोई शक नहीं। आ गया पहली मरतबा, ये आपके रेंज में आ गया फी ही, उसमें फी बोला जाता है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में।
تو कोई शक नहीं है उसमें हुदन हिदायत। ली के माने क्या होते हैं? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन हम उर्दू में बोलते हैं। हिदायत है मुत्तकीन के लिए। ठीक, आगे चले। अल्लज़ीना, इसको टर्मिनोलॉजी में इसके इस्तिलाह के लिहाज से कहते हैं वो जो के। आई मेट द पर्सन हु फला फला, इस तरह वो जो के। अल्लज़ीना, ये मुत्तकीन कौन है इनको बताया जा रहा है। ये अल्लज़ी वाहिद के लिए बोला जाता है, वो जो के। अल्लज़ीना ये बार बार आएगा, फिर इंशाल्लाह जो है ये याद हो जाएगा। अल्लज़ीना सबके लिए कहा जा रहा है, वो जो के युमिनूना। ये बताएं माजी है मुजारे, कम से कम इतना तो बताइए। मुजारे है, या भी आ रहा है, आखिर में जो है ऊना भी आ रहा है। या फलू या फला नहीं, या फलूना उस टाइप की चीज है। युमिनूना वो जो के ईमान रखते हैं या लाते हैं, बिल गैब, किस पर? गैब पर। बा के मानी जो है साथ के भी होते हैं, पर के भी होते हैं। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। तो जो गैब पर ईमान लाते हैं, वाह क्या मानी होंगी बात? और वाह और युकीमूना, कम से कम इतना पता चल रहा है या और ऊना किसके लिए? मुजारे माजी है, मुजारे है। और वो कायम करते हैं अस्सलाता, नमाज को। देखिए जबर बता रहा है इसके हवाले से, वो पता है ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, इसलिए जबर आया है, ये आपकी रेंज में आ जाता है। वो युकीमून सलाता, और वो कायम करते हैं नमाज को। वाह और दूसरी मरता है, तीसरी मरता है। तो बार बार ये आता रहेगा, तो उसको रटना है। वाह और ये मिम्मा जो है असल में है मिन और माँ, अलग अलग है, बोलते हैं मिम्मा। रवानी से बोलेंगे तो मिन माँ नहीं बोलते, मिम्मा ही बोलते हैं। वह मिन माँ, और मिन माने होता है आउट ऑफ, फ्रॉम। ये बार बार आता रहेगा, ठीक है। और उसमें से जो आगे बढ़ा दें, ये तजवीज का कायदा भी है, मलून का कायदा भी। आगे चलो, आगे पेज मिम्मा पढ़ा जाए। अब देखें जो लफ्ज आ रहा है ना, वो तो आपको बताना ही है, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आपने जो अरबी पढ़ी है वो बता दें मुझे जी। वह मिम्मा रज़क ना हुम, पहले इसका मादा बताएं। रेज़े काफ, माजी या मुजारे? माजी है। फिर है रज़क ना, हमने रिज़्क दिया। देखिए ये आपकी रेंज में आ गया, अगर आपने नहीं किया इसका मतलब समझिए आप, ये तो आना ही चाहना, इस तरह की रेंज में आ गया ना, इस तरह के अल्फाज रेंज में आते रहेंगे, वो आपको बताने पड़ेंगे, मुझे नहीं। वो एनालाइज करें आप खुद। रज़क ना, और जो हमने रिज़्क दिया, हम ये भी रेंज में आ गया, क्या माने? उनको। वह रज़क ना हम, वो मिम्मा रज़क ना, और जो कुछ उनको हमने रिज़्क दिया है, युनफिकूना। जी देखें इसके आगे मुजारी आ गया, या भी लग रहा है, आखिर में ऊना भी आ रहा है। युनफिकूना उर्दू बोलते हैं इन्फाक, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। तो वो खर्च कर, वो इन्फाक करते जो कुछ के हमने उनको दिया। तो नीचे करना, वाह क्या माने होंगे? और अल्लज़ीना पीछे बढ़ के आए पेज पे, क्या माने होंगे? वो जो के, और वो जो के युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, और वो जो के ईमान लाते हैं। अभी बा पढ़ गए हैं पीछे, बा की मानी क्या? आमन्तु बिल्लाहि, साथ या पर। और वो जो के, हाँ बिस्मिल्लाह के नाम के साथ, वो युमिनु वल्लज़ीना, और वो जो ईमान लाते हैं उस पर, माँ जो कुछ, उनज़िला, अभी आपकी रेंज में नहीं है फिलहाल। उनज़िला जो है ये पैसिव है, नाजिल किया। देखिए इसका मादा पता चल रहा है, नून जा और लाम है पैसिव, अभी आएगा नहीं। देखिए इसके में लिखा हुआ है पैसिव मजहूल आएगा तो रेंज में आएगा। अभी सादा तर्जुमा करने, बिमा उनज़िला, उस पर जो नाजिल किया गया, उतारा गया, इलई का। देखिए इला के माने होते हैं टू, का आपने पढ़ लिया, बताएं तो आप इला और का, इला माने होता है टुवर्ड्स से, टू, इलई का, और जो कुछ नाजिल किया गया तुझ पर, वाह और माँ जो, और जो माँ के मानी नहीं के भी होते हैं, जो भी होते हैं। और जो, फिर दोबारा बताएं, अल्लाह ताला बार बार रिपीट करेंगे तो पीछे पड़ा, उनज़िला नाजिल किया गया, और जो नाजिल किया गया, मिन कबलिक, कबल का भी आता है, कबल भी आता है, आपसे पहले। और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, वाह, और फिर दोबारा बताएं बा। अल्लाह ताला खुद ही रेपिटेशन बता रहे, बा के मानी क्या होते हैं? पर यसान, हाँ। वह बिल आखिरती,
آخرت پر، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب، اور وہ آخرت پر یو کے نونا ماضی مضارع مضارع ہے، یا اونا بتا رہا ہے یہ کیا ہوگا، لفظ یقین سے بنا ہے، وہ بالآخرت ہم یو کے نون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آگے چلیں. اب یہ اولائکا پہلا پڑھا تھا نا آپ نے، ذالکا، ذالکا کے معنی ہوتے ہیں دیٹ، اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ اولائکا، دوز. دوبارہ آئے گا 10 مرتبہ آئے گا، کتنے مرتبہ بھولو گے میں بتاتا رہوں گا. اولائکا یہی لوگ ہیں علی پر، کس پر ہیں، علی ہدن ہدایت پر ہیں، کس کی طرف سے ہے، من ربہم ان کے رب کی. ہم جو پڑھا تھا نا، ہم کی بجائے ہم آ گیا اس لیے کہ پیچھے زیر آ گیا، زیر کی مطابقت جو ہے یہ اس کی صوتی آہنگ جو بنتا ہے زیر کے ساتھ بنتا ہے، اور وہ ہدایت میں ہے ان کے رب کی طرف سے. واہ، اور پھر دوبارہ آ گیا اولائکا، بولے دے، یہ دوز نہیں، دوز کے معنی میں آئے گا. اور وہ ہم، ابھی ہم پڑھا ہے آپ نے، وہ سب، اور وہ سب جو ہے المفلحون، کس کو کہتے ہیں، فلاح کامیابی، اور وہ فلاح پانے والے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. انا، بے شک کے معنی پہلی مرتبہ سے بتا رہا ہوں، انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک. الذین بتائیں، ابھی آ چکا ہے. جب اسٹارٹ میں آتا ہے تو انا ہوتا ہے، اگر سینٹنس کے بیچ میں آتا ہے انا ہوتا ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. بے شک، ٹھیک ہے، بے شک الذین، ابھی آ چکا ہے چوتھی مرتبہ، الذین وہ جو کہ بے شک وہ جو کہ. اب یہ آپ کی رینج میں میں نہیں بتاؤں گا. کفروا کیا ہے، ماضی مضارع کیا ہے، کیا ہے ماضی. کفرا اس نے کفر کیا، کفرا انہوں نے کیا، کفروا ان سب نے کیا. بے شک وہ جو جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک، سوا یہ لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں برابر ہے. شاید اردو میں سوا سوا، ٹھیک ہے، درمیان. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سوا برابر ہے. علیہم، دیکھیں یہاں پہ پیچھے یہاں آ گیا، زبر آ گیا، تو ہم علیہم، اللہ کے معنی بھی اور ہم بھی آ چکا ہے اس سے پہلے. ابھی آپ نے زبان یاد کی ہیں، برابر ہے ان کے لیے، ان پر. نہیں اور جی، ان کے لیے برابر ہے. آیا کے معنی یا کیا کے معنی، انذرتا. دیکھیں اس کا مادہ کیا ہے، نظر، نون زال اور رے، اسی سے جو ہے ڈرا، حضور اس کا ڈرانا. اب دیکھیں انذرتا جو ہے نا، تیز بڑھتا کیا بتا رہا ہے، تم کے لیے آتا ہے، تو ایک مرد کے لیے. لیکن یہ جو ہے مجرد نہیں ہے، یہ مزید فی ہے. اس کے آگے دیکھیں الف لگا ہوا ہے. اگر یہ صرف نظر تا ہوتا نا تو یہ مجرد ہوتا. الف آ الگ ہے، انذرتا آیا تو ان کو ڈرائے، انذرتا ہم ان کو، ام یا لم تنذر، یہ آپ کی رینج میں نہیں آئے گا. لم تنذر تو ان کو نہ ڈرائے. لا یؤمنون، لا کے معنی بھی نہیں کے ہوتے ہیں، یؤمنون ماضی مضارع، وہ ایمان نہیں لائے. جی، وہ ایمان نہیں لائیں گے. بس ایک آیت کر لیتے ہیں. ختم، یہ کیا چیز ہے، مہر لگا دی، یہ ماضی ہے. ختم، مہر لگا دی. اب دیکھیں کس کا لگائی، اللہ، اس کا پیش کیا بتا رہا ہے، فاعل بن کے آ رہا ہے. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی. اللہ پہلے آ چکا ہے، قلوبہم. ابھی آپ جو ہوا ہمارا پڑھ رہے تھے، پھر دوبارہ کہیں پڑھا اللہ قلوبہم، ان سب کے دلوں پر یا ان کے اوپر. وا، اور اللہ اوپر، سمعہم ان کی سماعت. وا، اور اللہ پر، ابصارہم، ابصار بصر، ابصار دیکھنے کو کہتے ہیں. اور ان کی جو ہے آنکھوں پر کیا ہے، غشاوہ. جیسے غشی ہوتی ہے، غشی آ جاتی ہے، انسان جو گر جاتا ہے تو غاشیہ چھانے والی آنکھ جو ہے اس کو ہوش نہیں آتا، کور. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر جو ہے پردہ ہے. وا، اور ابھی ہم نے پڑھا للہ، وہی والا ہے. اب اس کے آگے پیش آ گیا تو لہم نہیں کہا جاتا، لہم. اور لیے ان کے، اور ان کے لیے ہے کیا ہے، عذاب عظیم. اسلام پر جو ہے پہلے بتائی کہ یہ جب مائل کے ساتھ آئے گا ہوتی ہے.
ये तकरीबन जो है 10-12 आयतें जो है हमने तिलावत की, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी आया, लेकिन क्या कि जैसे ज़माइर वगैरह थे जिसको अच्छे याद मेमोराइज होंगे, जैसे समझा होगा तो खट से मानी बताएगा, वरना क्या होगा अल्लाह ताला दोबारा रिपीट करेंगे, बार-बार करते रहेंगे, बार-बार करते रहेंगे, 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा। तो इसको और कई चीजें ऐसी आपको खुद अंदाजा हो गया, कोई रेंज में आ रही है, कोई नहीं आ रही। जब ये पढ़ लेंगे ना माजी मुजाहरा के बाद नहीं अमल मजबूर वगैरह, तो ये सारी चीजें जो है जल्द अज जल्द रेंज में आती रहेंगी, लेकिन ये डिपेंड करता है आप उनकी स्पीड क्या। अगर आप पिछला याद करके आएंगे तो मेरे लिए बहुत जल्दी हम पहुंच जाएंगे। जो मैंने पूरा दोबारा रात को बैठ के एनालाइज किया, क्या है मैं जो कुछ करवाने जा रहा हूँ, पूरी अरबी किताबों में देखा इसके हवाले से कि क्या जो है जरूरी है और क्या जो है ऐसे ही चल जाए, तो पता चला कि बहुत कम है जो जरूरी है। ये अल्लाह ताला आसानी पैदा करती है। कोई सवाल हो तो पूछ लें। इसमें एक और बात है, जैसे सीखी आपने बताया कि जेल लगा हुआ है उसको, तो वैसे तो आप क्या जरूरी है आप कह रहे हैं, लेकिन वो हर कोई कह रहा है शुरू हो गया तो जल आज की जो है जो पोजीशन देखिए इसके अंदर मैंने मुरक्कबात लिखा है, इसके अंदर फी ही यानी फी हु नहीं होना चाहिए, फी ही होना चाहिए, नहीं इस तरह से लगा नहीं इला मस्जिद सही है, इला मस्जिद सही है, लेकिन उसकी हालत जो आई है ना वो आई है वो आना चाहिए, हालत फी की वजह से वो बनना चाहिए, हरफ जर की वजह से तो मजरूरी नहीं लगेगा, वरना फिर जब मजबूर आप पढ़ेंगे नहीं पैसे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पेश आएगा या फिर अगर जबर और वहाँ भी जबर नहीं आएगा, नहीं आएगा। जी जी और कुछ सवाल आपको पूछने के आज तो सबक तो खत्म हो गया, अपलोड हो गई नहीं क्या जो मैं इसलिए चाह रहा था कि आपके पूछने या आपके सवाल जो है ना सवाल का सेक्शन है 5-10 मिनट तक, जब तो वो करना है तो इत्मीनान के साथ जो है ना जितना आप पूछेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए भी कि मैं किस तरह से अपडेट कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको फिर बताया आपको कि तर्जुमा करना